জেলবন্দি আসামিদের জামিনদার কেউ না থাকলেও সহজেই হয়ে যাচ্ছিল জামিন। কিন্তু কিভাবে? শুধুমাত্র নকল কাগজপত্র জমা করে। আর যে নথি জামিনের জন্য দেওয়া হচ্ছিল তা কিন্তু দেখে চট করে বোঝার কোনো উপায় থাকছিল না। আর এটা হচ্ছিল পুলিশের নাকের ডগায় দীর্ঘদিন ধরে, কিন্তু পুলিশ কিছুই ধরতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত এই সংক্রান্ত একটি চক্রের সন্ধান পায় পুলিশ। মোট 7 জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জানা গিয়েছে মাত্র 10,000 টাকায় জামানত করে দিত এই চক্রটি। ধরা পড়ার আগে থেকে 600 থেকে 700 জন জেলবন্দিকে এভাবে ভুয়ো নথি জমা করে জেলের বাইরে বের করে এনেছে চক্রটি। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে যোগীরাজ্য গাজিয়াবাদে। গাজিয়াবাদের ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং কবিনগর থানার পুলিশ যৌথ অপারেশন চালিয়ে এই চক্রটিকে ধরে। জানা গিয়েছে ধৃতদের কাছ থেকে বহু ভুয়ো আধার কার্ড, থানার শিলমোহর, জামিনের বন্ডের রসিদ, টিকিট উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে কাজ করত চক্রটি? জানা গিয়েছে ভুয়ো নথি দিয়ে আধার কার্ড তৈরি করত চক্রটি। এরপর জাল নথি আদালতে পেশ করা হতো জামিনের জন্য। আশ্চর্য, ভাবুন যে এত নিখুঁতভাবে সব নথি জাল করা হতো যে কারো ধরার কোনো উপায় ছিল না। আর তাই জামিনও মিলছিল কোনো সমস্যা ছাড়াই। এই ধৃতদের জামিন দেওয়ার জন্য ভুয়ো জামিনদার তৈরি থাকতো, ভুয়ো নথিও তৈরি হতো। ধৃতদের জিজ্ঞাসা করে পুলিশ জানতে পেরেছে যে 6 বছর ধরে প্রায় এই চক্রটি ভুয়ো নথি জমা করে জামিন করাচ্ছিল ধৃতদের। পুলিশ জানিয়েছে জামিনের আগে জেলবন্দীদের কাছ থেকে 5 থেকে 10,000 টাকা নেওয়া হতো। এরপর ভূমি দপ্তর থেকে তথ্য বের করে জাল আধার কার্ড বানানো হতো। এরপর দস্তাবেজের নথিকে সিএসসি জনসেবা কেন্দ্রের শিলমোহর লাগিয়ে থানার শিলমোহরও লাগানো হতো। সবশেষে জামানত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতো। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের মধ্যে রয়েছে মেরঠের বাসিন্দা আনুজ যাদব, গাজিয়াবাদের বাসিন্দা ইসরার, মোদিনগরের বাসিন্দা বাবুল, লোকেন্দ্র, রাহুল শর্মা, সুনীল কুমার এবং বিকাশ রাজপুত। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ল্যাপটপ, 21টি ভুয়ো আধার কার্ড, 18টি ভুয়ো ক্ষেতের কাগজ, 5টি ফাঁকা বেল বন্ড, 5টি রসিদ টিকিট, 10টি ভুয়ো শিলমোহর এবং স্ট্যাম্প পেপার। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের মধ্যে অনেকেই আগে কাজকর্ম করত, কিন্তু বেশি লাভের আশায় এই অসৎ পথ বেছে নিয়েছে চাকরি ছেড়ে। কি বলছেন ক্রাইম ব্রাঞ্চের এডিসিপি পীযূষ কুমার সিং, শুনবো। स्वाट टीम क्राइम ब्रांच और थाना कविनगर पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा ऐसे अभियुक्त जो कि जिला कारागार में निरुद्ध हैं और उनकी जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, उनके जमानत को एग्जीक्यूट कराने के लिए फर्जी जमानतदार प्रस्तुत किए जाते थे। इनके द्वारा सबसे पहले भूले पोर्टल से खतौनी के डॉक्यूमेंट निकाले जाते थे। उन डॉक्यूमेंट पे जिन व्यक्तियों के नाम लिखे होते थे उसी नाम के फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते थे। फिर खतौनी के डॉक्यूमेंट और फर्जी आधार कार्ड को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके ऐसे अभियुक्त जो जिला कारागार में निरुद्ध हुआ करते थे उनको जमानत को एग्जीक्यूट कराया जाता था। क्या कुछ बरामद है इनके पास से और कितना इनके गिरोह के कितने लोगों की फरार? इसमें कुल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 8 अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनको सत्यापित किया जा रहा है। शीघ्र ही इनके विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इनके पास से हमें 21 आधार कार्ड, 18 के लगभग 18 की संख्या में खतौनी के डॉक्यूमेंट और भारी मात्रा में जो थाने और विभिन्न ऑफिसेस की फर्जी मोहरें और वकालतनामे आदि बरामद हुए हैं। गाजियाबाद के अलावा कहाँ जो अब तक की पूछताछ हुई है उसमें इनके द्वारा नोएडा में भी कार्रवाई इस तरह के फ्रॉड किए जाने की बात प्रकाश में आई है, जिसको हम जांच करा रहे हैं। अपराधियों को जमानत दिलाने के लिए क्या संपर्क किया करते थे? क्या कोई अधिवक्ता भी? इनके द्वारा जो पूछताछ में बताया गया है कि जैसे किसी अभियुक्त की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जाती थी तो उसके जो पैरवीकार होते थे, पैरोकार होते थे, परिवार के सदस्य होते थे, वो इनको अप्रोच करते थे कि ये उनके साथ समन्वय स्थापित करके उनको ये फर्जी जमानतदार उपलब्ध कराया करते थे। ये गैंग अलग अलग समय से लोग काम कर, कोई 1.5 साल से 2 साल से, लेकिन मोटे तौर पे ये 2020 के बाद से लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं। सर, इनके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं, तो ये फर्जी आधार कार्ड किस तरह से इन्होंने बनवाए थे और कहां से? ये फर्जी आधार कार्ड इसी में एक व्यक्ति विकास राजपूत हैं जिसके द्वारा बनाए जाते थे। ये किसी भी आधार कार्ड पे फोटोशॉप एडिटर का प्रयोग करके उसमें नाम, पिता का नाम, एड्रेस और फोटो चेंज कर दिया करते थे और उसके बाद उसका कलर प्रिंट आउट निकाल के फर्जी आधार कार्ड इनको जनरेट करते थे। क्या कुछ प्रोफाइल है? ये अधिकतर इसमें जो है पहले कहीं नौकरी कर रहे थे, उसके बाद जो है इनकी जॉब छोड़ के इसमें लालच में आके इस तरह के काम शुरू कर दिए हैं। लगभग सभी की जो शिक्षा है वो 5वीं से लेकर 10वीं के बीच की। मुख्य आरोपी का नाम इसमें इसरार है और अनुज यादव, ये 2 मुख्य आरोपी हैं।
জেলবন্দি আসামিদের জামিনদার কেউ না থাকলেও সহজেই হয়ে যাচ্ছিল জামিন, শুধুমাত্র নকল কাগজপত্র জমা করে। আর যে নথি জামিনের জন্য দেওয়া হচ্ছিল তা কিন্তু দেখে বোঝার চট করে কোনো উপায় ছিল না। আর এটা হচ্ছিল পুলিশের নাকের ডগায় দীর্ঘদিন ধরে, কিন্তু পুলিশ কিছুই করতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত এই সংক্রান্ত একটি চক্রের সন্ধান পায় পুলিশ। মোট 7 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা গেছে মাত্র 10,000 টাকায় জামানত করে দিত এই চক্রটি। ধরা পড়ার আগে থেকে 600 থেকে 700 জন জেলবন্দিকে এভাবে ভুয়ো নথি জমা করে জেলের বাইরে বের করে এনেছে চক্রটি। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে যোগীরাজ্য গাজিয়াবাদে। मुख्य कौन है? কি বলছেন পুলিশ আধিকারিক, শুনবো। स्वाट टीम क्राइम ब्रांच और थाना कवि नगर पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा ऐसे अभियुक्त जो कि जिला कारागार में निरुद्ध हैं और उनकी जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, उनके जमानत को एग्जीक्यूट कराने के लिए फर्जी जमानतदार प्रस्तुत किए जाते थे। इनके द्वारा सबसे पहले भूले पोर्टल से खतौनी के डॉक्यूमेंट निकाले जाते थे। उन डॉक्यूमेंट पे जिन व्यक्तियों के नाम लिखे होते थे उसी नाम के फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते थे। फिर खतौनी के डॉक्यूमेंट और फर्जी आधार कार्ड को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके ऐसे अभियुक्त जो जिला कारागार में निरुद्ध हुआ करते थे उनको जमानत को एग्जीक्यूट कराया जाता था। क्या कुछ बरामद है इनके पास से और कितना इनके गिरोह के कितने लोग अभी फरार हैं? इसमें कुल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 8 अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनको सत्यापित किया जा रहा है। शीघ्र ही इनके विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इनके पास से हमें 21 आधार कार्ड, 18 के लगभग 18 की संख्या में खतौनी के डॉक्यूमेंट और भारी मात्रा में जो थाने और विभिन्न ऑफिसेस की फर्जी मोहरें और वकालतनामे आदि बरामद हुए हैं। गाजियाबाद के अलावा कहाँ जो अब तक की पूछताछ हुई है उसमें इनके द्वारा नोएडा में भी कार्रवाई इस तरह के फ्रॉड किए जाने की बात प्रकाश में आई है, जिसको हम जांच करा रहे हैं। सर, अपराधियों को जमानत दिलाने के लिए कैसे संपर्क किया करते थे? क्या कोई अधिवक्ता भी? इनके द्वारा जो पूछताछ में बताया गया है कि जैसे किसी अभियुक्त की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जाती थी तो उसके जो पैरवीकार होते थे, पैरोकार होते थे, परिवार के सदस्य होते थे, वो इनको अप्रोच करते थे कि ये उनके साथ समन्वय स्थापित करके उनको ये फर्जी जमानतदार उपलब्ध कराया कितना करते समय हो गया सर? थे। ये गैंग अलग अलग समय से लोग काम करें, कोई 1.5 साल से 2 साल से, लेकिन मोटे तौर पे ये 2020 के बाद से लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं। और सर इनके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं, तो ये फर्जी आधार कार्ड किस तरह से इन्होंने बनवाए थे और कहाँ से? ये फर्जी आधार कार्ड इसी में एक व्यक्ति विकास राजपूत हैं जिसके द्वारा बनाए जाते थे। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।